ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ حویلی میں خوب گہما گہمی تھی۔ مہمانوں کے آنے جانے کا سلسلہ اور خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ حویلی کو کسی دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ شاہ خانزادہ کی شادی تھی اور حویلی کے لوگ تیاریوں میں مصروف تھے۔ نوکر چاکر بھی بھاگتے دوڑتے پھر رہے تھے۔ کوئی ہاتھ میں چائے اور دیگر لوازمات کی ٹرے اٹھائے جا رہا تھا تو کوئی گھر کی سجاوٹ میں مصروف تھا۔ باقی باورچی خانے میں بھی شیلف مختلف پکوان بنانے میں مشغول تھے۔ مہروز خانزادہ بھی حویلی پہنچ چکا تھا۔ شہر سے وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے آیا تھا۔ جو ہی وہ حویلی داخل ہوا اس کا پھولوں سے استقبال کیا گیا۔ سب نے اس پر گلاب کے پھول نچھاور کیے اور پھولوں کا ہار اس کے گلے میں پہنایا گیا۔ ریما بیگم نے اس کے اوپر سے نوٹ وار کر ہوا میں اچھالے تھے۔ مہروز کے آتے ہی سب اس کی خدمت میں لگ گئے۔ جہاں حویلی میں اس قدر رونق اور چہل پہل تھی، وہیں حویلی کے اگبی جانب چند منٹس کے فاصلے پر ایک گھر تھا جہاں اداسی اور ویرانی نے ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ وہ معمر خاتون بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور ان کی پوتی فریال ان کے لیے دودھ پتی بنا کر لائی تھی۔ جلدی دے دے پتر، پھر مجھے حویلی بھی جانا ہے، آج بڑا کام ہے حویلی میں۔ دادی جان کی بات سن کر فریال نے انہیں اداسی سے دیکھا۔ وہ کل رات سے بخار میں تپ رہی تھی اور آج وہ حویلی جا کر کام کرنے کی بات کر رہی تھی۔ دادی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کی جگہ آج میں حویلی چلی جاتی ہوں، آپ آرام کریں۔ وہ انہیں تفکر سے دیکھ کر بولی، لیکن وہ ضد کرنے لگیں کہ وہ آج حویلی جائیں گی کیونکہ آج ان کی حویلی میں زیادہ ضرورت تھی۔ شادی والا گھر تھا، 100 کام تھے۔ فریال بھی ان کو قائل کرنا خوب جانتی تھی، اس لیے اپنی قسم دے کر انہیں اپنی چھوٹی بہن صدف کے پاس چھوڑ کر حویلی چلی آئی۔ یہ حویلی معمولی لوگوں کی نہیں تھی، یہاں بہت امیر لوگ رہتے تھے۔ بشیرہ بی بی اس حویلی میں ملازمہ تھی اور کافی سالوں سے یہاں کام کر رہی تھی۔ ان کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جو شادی کے چند سال بعد اپنی بیوی کے ساتھ ایک حادثے میں انتقال کر گیا۔ ان کے جانے کے بعد دادی جان اور ان کی پوتیاں فریال اور صدف تنہا رہ گئی۔ دادی نے ان کی دیکھ بھال کے لیے ملازمت تلاش کرنا شروع کر دی اور پھر حویلی میں انہیں اچھی تنخواہ پر ملازمہ رکھ لیا گیا۔ ان کی نوکری کے بعد گھر کے حالات کچھ بہتر ہو گئے تھے۔ گھر کرائے کا تھا اور وہ لوگ جدی پشتی غریب تھے۔ فریال بھی چند جماعتیں پڑھی تھی، شہر جا کر کالج پڑھنے کے پیسے نہیں تھے۔ زندگی اسی ڈگر پر چل رہی تھی۔ دادی جان دن سے شام تک حویلی ہوتی تھی۔ اگر کبھی کام زیادہ ہوتا اور وہ تھک جاتی تو فریال یا صدف ان کی مدد کروانے ان کے ساتھ حویلی میں چلی جاتی تھی۔ آج بھی ان کی طبیعت خرابی پر فریال حویلی جا رہی تھی۔ پرانے سرخ اور سیاہ رنگ کے کپڑوں پر اس نے سیاہ رنگ کی شال سر پر اوڑھی اور حویلی نکل گئی۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ تپتی دوپہر میں جب سورج اپنے جوبن پر تھا، وہ پیدل چلتی جا رہی تھی۔ حویلی پہنچ کر وہ ریما بیگم کے پاس گئی۔ دادی کی خراب طبیعت کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ آج وہ ان کی جگہ کام کرے گی۔ یہ سن کر ریما بیگم کو انتہا کا غصہ چڑھا۔ بس بی بی، یہ ڈرامے ہیں تمہاری دادی کے، اسے پتا تھا آج حویلی میں کام ہے، طبیعت خرابی کا بہانہ کر دیا۔ اب تم آ گئی ہو تو ڈھنگ کا کام کرنا، مفت کے ہر ڈھرامی کے پیسے نہیں دیتی میں تمہاری دادی کو۔ جاؤ، یہ بیڈ شیٹس ہیں، سب کمروں کے بیڈ کی چینج کر دو بیڈ شیٹس۔ مومو بناتے ہوئے تلخی سے بولیں اور صوفے پر رکھی بیڈ شیٹس کی طرف اشارہ کیا اور دوسرے ملازموں کو کام سمجھانے چلی گئی۔ ان کے الفاظ نے فریال کے دل پر ایک گہری ضرب لگائی تھی۔ جس طرح انہوں نے اس کی دادی کے بارے میں بات کی تھی اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کی دادی کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی تھی، وہ واقعی بیمار تھی اور بیماری کے باوجود فکر میں حویلی آنا چاہ رہی تھی، مگر ان کی طبیعت کے پیش نظر فریال نے انہیں آرام کرنے کو کہا تھا اور خود ان کی جگہ آ گئی تھی۔ حویلی کی عورتیں بہت سخت تھیں، اپنے ملازمین کے ساتھ ان کا رویہ تلخ تھا، ان کے اندر دولت کا غرور موجود تھا۔ اب بھی فریال کے ساتھ بات کرتے ان کے لہجے اور نگاہوں میں حقارت تھی۔ فریال اتنی مضبوط نہیں تھی کہ کسی کا بھی تلخ لہجہ ہنس کر برداشت کر لیتی۔ وہ ضبط سے آنسو پیتی بیڈ شیٹ اٹھا کر کمرے میں آ گئی۔ اس نے بیڈ شیٹ بدلنا شروع کی۔
उसे रीमा बेगम की बातें नजरअंदाज नहीं हो रही थी। वो उनके आगे अपने और दादी के हक में कुछ बोल नहीं सकी थी, क्योंकि वो गरीब लड़की थी, जबकि मुकाबिल एक अमीर औरत थी, और अगर वो कुछ बोलती तो ये गुस्ताखी माना जाता और शायद वो उसकी दादी को नौकरी से निकाल देती। बहुत सी मजबूरियों ने उसे खामोश रहने पर मजबूर कर दिया था। बेडशीट्स चेंज करती हुई वो आंसू बहा रही थी। जब महरोज कमरे में दाखिल हुआ तो उसे अपने कमरे में देखकर हैरान रह गया। आप कौन हैं? वो उससे रुककर पूछने लगा तो फरियाल ने डर कर आंसू साफ किए वो तकिए पर कवर चढ़ा रही थी। मैं फरियाल हूं, मेरी दादी जो यहां काम करती हैं उनकी पोती हूं मैं। वो अपना तारुफ करवाने लगी। वैसे तो महरोज खान उसे उसकी दादी को जानता था, मगर फरियाल से उसका 5 साल बाद सामना हो रहा था, इसीलिए वो उसे पहचान नहीं पाया। ओहो, तो तुम फरियाल हो, काफी बदल गई हो तुम। पर सब ठीक तो है? तुम रो रही थी। दादी ठीक है तुम्हारी? वो कहाँ है? उनसे भी मिल लूं मैं? वो उसे बगौर देखते कहने लगा। 5 साल बाद उसे देखकर वो मबहूत रह गया था, मगर इसकी आंखों में आंसू देखकर उसे बहुत हैरानी हुई थी। 5 साल पहले वो बहुत चुलबुली शरारती सी लड़की हुआ करती थी, जो कि अब मेच्योर नजर आ रही थी। दादी की तबीयत ठीक नहीं है, वो घर पर हैं। वो मुख्तसर जवाब देकर बोली और निगाहें चुराती बाकी बेडशीट्स उठाकर कमरे से चली गई। उसके इस रूखे रवैये पर महरोज हैरान रह गया। पहली तो वो ऐसे नहीं हुआ करती थी। जब दादी के साथ हवेली आती थी तो खूब शरारतें करती थी। वो रेस्ट करने बेड पर लेट गया। शाम को घर में फंक्शन था। हवेली की तफसीली सफाई हो चुकी थी। मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। आज मेहंदी का फंक्शन लॉन में था। फरियाल, जाओ तुम भी अब ये रफ कपड़ों के बजाय घर से थोड़े साफ कपड़े पहनकर आ जाओ। मेहमानों के सामने हमारे मुलाजिम अगर इस हुलिये में हों तो हमारी बेइज्जती होगी। रीमा बेगम उस पर तनकीदी निगाह डालते बोली। वो अपने कपड़ों को देखने लगी। ये उसने नया जोड़ा बनाया था और उसे बहुत पसंद था, जबकि रीमा बेगम ने बेदर्दी से रफ कह दिया था। वो उनकी तरह अमीर नहीं थी जो ब्रांडेड कपड़े पहनती। आज सारा दिन काम के दौरान उसके कपड़ों पर भी मट्टी लग चुकी थी। उनका कहा उसे मानना पड़ा, क्योंकि वो उनकी मुलाजमा थी और वो मालिक। घर पहुंचकर उसने दादी को मेडिसिन दी और एक अच्छा जोड़ा जो कि हनूस सस्ता था, ब्रांडेड नहीं था, वो पहना और आईने के आगे खड़ी होने लगी। लंबे बालों का स्टाइल बनाया और नफासत से दुपट्टा लिया। दादी को चाय बनाकर देने के बाद वो हवेली चली आई। ये क्या कपड़े पहनकर आई हो तुम फरियाल? क्या कोई अच्छे कपड़े नहीं हैं तुम्हारे पास? रीमा बेगम ने उसके कपड़ों को देखकर दिल जलाते हुए पूछा। वो नफी में सर हिला गई। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे अपना ये जोड़ा बहुत पसंद था, लेकिन रीमा बेगम को शायद वो हमेशा हर कपड़ों में हकीर ही लगती थी, क्योंकि वो गरीब जो थी। उन्होंने उसे काम में लगा दिया। वो फूलों की टोकरियां उठाती आंखों में नमी लिए लॉन की तरफ चली गई। उसने टोकरियां टेबल पर रखना शुरू की। महरोज सफेद रंग की शलवार कमीज पर सुनहरी रंग की वेस्ट कोट पहनकर सजावट का जायजा लेने लॉन में आया तो उसकी निगाह फूल तरतीब से हर एक टेबल पर रखती फरियाल पर गई। जो ही उसने उस पर निगाह डाली तो वो मबहूत रह गया। उसे लगा जैसे उसके आसपास कहीं जल तरंग से बज उठे हों। वो सांस तक लेना भूल गया था। सादा से सूट और मेकअप में वो बहुत हसीन लग रही थी। यूं तो इस फंक्शन में बहुत सी लड़कियां थीं जो अमीर थीं। उन्होंने हजारों रुपए के ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे, मगर जाने क्यों उसकी निगाह सिर्फ इसी लड़की पर टिक गई। फरियाल जो सबको जूस सर्व कर रही थी, जब अचानक रीमा बेगम को जूस पकड़ाते उसका तवाज़न बिगड़ा और जूस उनके महंगे कपड़ों पर जा गिरा। चटाख! उन्होंने जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर रसीद किया। वो चेहरे पर हाथ रखे हक्का बक्का उन्हें देखती रही। अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता तुम्हें? इतना महंगा सूट खराब कर दिया तुमने मेरा। वो चूंकि अकेली थी और आसपास मेहमान नहीं थे, इसीलिए वो उसकी क्लास लेने लगी। दूर खड़ा महरोज ये सब देख चुका था। वो शॉक्ड होकर तेज कदम उठाता उनके करीब आया।
सॉरी, गलती से हो गया, माफ कर दे। वो आंखों में आंसू लिए उनसे माजरत करने लगी। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम ये सूट ख्वाब में भी खरीद सको। चली जाओ यहां से, अब मेरे सामने ना आना, काम करो जाकर। वो महरोज की वजह से खामोश हो गई थी, उसे ज्यादा नहीं डांटा था। वो आंसू साफ करती सिसकते हुए वहां से चली गई। उसके आंसू महरोज के दिल पर लग रहे थे। मामा, उससे गलती से जूझ गिरा होगा, आपको उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था और उसे बातें नहीं सुनानी चाहिए थी। वो अफसोस करते हुए बोला, तुम नहीं जानते महरोज, इन गरीब लोगों को ये सिर्फ शक्ल से भोले नजर आते हैं, अंदर इनके हसद छुपा होता है। अगर इनके साथ इनकी औकात जैसा सलूक ना करो तो ये सर पर चढ़ जाते हैं। वो टिश्यू से जूस साफ करते हुए बोली। अपनी माँ की सोच पर महरोज दिल ही दिल में अफसोस करने लगा। कपड़े चेंज करने रीमा बेगम अपने कमरे में चली गई, जबकि उसका दिल हनूस फरियाल की फिक्र में था। कुछ सोचकर उसने लॉन की दूसरी जानिब कदम बढ़ा दिए, जहां फरियाल गई थी। एक कोने में खड़ी वो फूलों की लड़ियां दीवार से लगाते आंसू बहा रही थी। मामा की तरफ से मैं तुमसे सॉरी कहता हूं फरियाल। उनका रिएक्शन बहुत सख्त था। वो उसके करीब आकर बोला और उसे टिश्यू पेपर थमा दिया ताकि वो अपने आंसू साफ कर ले। फरियाल हैरान रहकर उसे देखने लगी। महरोज अपनी माँ से बिल्कुल अलग था। उसने कांपते हाथों से उससे टिश्यू पेपर लिया और अपने आंसू साफ करने लगी। महरोज गौर से उसे ही देख रहा था। जब फरियाल ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जो पाया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो वहां से जाने लगी, मगर हील्स की वजह से उसका तवाजुन बिगड़ा और वो गिरने लगी। मगर महरोज फौरी उसे गिरने से बचाते थाम चुका था। वो उसकी बाहों में हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी और वो उसकी आंखों में खो सा गया था। जहां नमी थी, दर्द था, अजियत थी। फरियाल ने जब्त से आंखें मींची और उससे अलग हुई तो वो होश की दुनिया में आया। थैंक्स मुझे बचाने के लिए, वो उसे शुक्रिया अदा करती झेम कर वहां से चली गई। उसका दिल तेजी से धक धक कर रहा था और महरोज सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा था। वो रात को फंक्शन खत्म होने के बाद काम मुकम्मल करके घर चली आई थी। घर आकर उसने दादी को कुछ नहीं बताया कि रीमा बेगम का उसके साथ कैसा सलूक था। वो चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए खुशी से उनको बता रही थी कि उसे फंक्शन में बहुत मजा आया। तन्हाई में वो रीमा बेगम के सलूक के बारे में सोचती रो रही थी। अगर वो गरीब थी तो इसमें इसका कोई कसूर नहीं था। इंसान चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, मगर गरीब की तरफ हकारत से देखने का उसे कोई हक नहीं। जहां वो रीमा बेगम के सलूक पर दिल गिरफ्ता हुई थी, वहीं महरोज का सलूक याद आया तो उसके चेहरे पर दिल फरेब मुस्कान फैल गई। वो बहुत अच्छा था। 5 साल पहले जब वो अपनी दादी के साथ हवेली आई थी तो अक्सर उसका महरोज से सामना होता था। महरोज तब भी उसके साथ अच्छा सलूक करता था। इन 5 सालों में वो महरोज को भूल चुकी थी, मगर आज उसे इतने साल बाद देखकर इसका दिल अजीब से अंदाज में धड़का था। वो सारी यादों को पसे पुष्ट डालकर सोने के लिए लेटने लगी, क्योंकि उसे कल दोबारा हवेली जाना था। आज बारात का फंक्शन था। सुबह से ही हवेली में तैयारियां चल रही थीं। बारात रात की थी और सब लोग बैंक्वेट हॉल जाने के लिए तैयार थे। फरियाल हवेली में बाकी मुलाजमों के साथ थी। घर के 2 अफराद भी घर पर मौजूद थे ताकि घर का ख्याल रखा जा सके। फरियाल हवेली की सफाई कर रही थी। उसने लॉन में मौजूद स्टोर रूम में फालतू सामान रखना शुरू किया। वो पेटी खोलकर उसमें बिस्तर चादरें रख रही थी जब अचानक उसे लगा कि कमरे में कोई दाखिल हुआ है, जिसने कमरे में आते ही लाइट बुझा दी। अंधेरा छा गया। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो डर कर मुड़ी थी। कोई उसे अपनी तरफ आता महसूस हुआ। कौन? वो डर कर बोली, मगर मुकाबिल ने कुछ ना बोला और उसे जमीन पर धक्का दिया। उसकी रूह फना हो गई। उसकी छठी से उसे कुछ गलत होने का अलार्म देने लगी। उस शख्स ने दरवाज़ा बंद किया और उसे खींचकर अपने हिसार में लिया। इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि इसके साथ कुछ बहुत गलत होने वाला था। उसकी जान निकल रही थी। इस मुश्किल सूरत हाल में उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते मुकाबिल को ज़ोरदार धक्का दिया
और कमरे का दरवाजा खोलती बाहर निकलकर भागने लगी। महरोज का फोन घर पर रह गया था, वो गाड़ी में था। जब उसे याद आया, ओ शिट मॉम, मैं अपना फोन लेकर आता हूं, वो रीमा बेगम से कहने लगा। उन्हें हॉल में छोड़कर उसने गाड़ी का रुख हवेली की तरफ किया। जब वो हवेली आया और अपना फोन लिया तो उसकी बेताब निगाहें फरियाल को ढूंढने लगी। फरियाल कहाँ है? जब वो पूरी हवेली में नजर न आई तो उसने मुलाजमा से पूछा जो कपड़े तय लगा रही थी। पता नहीं साहब जी, वो तो स्टोर रूम में गई थी सामान रखने, अब तक नहीं आई, वो मसरूफ से अंदाज में बोली तो वो उसे देखने लॉन में चला गया, मगर दंग रह गया जब वो उसे सामने से भागती हुई नजर आई और इससे टकरा गई। क्या हुआ फरियाल? वो उसे हवास बाख्ता देखकर पूछने लगा। फरियाल रोती हुई बेसाख्ता उसके सीने से लग गई, जैसे उसकी पनाहों में छुपकर उस शख्स से बचना चाह रही हो। महरोज, वो स्टोर रूम में कोई था, उसने मुझे काबू में करने की कोशिश की, लाइट बंद की और मुझे जमीन पर धक्का दिया। उसने दरवाजा बंद कर दिया तो मैं उसे धक्का देकर स्टोर रूम से निकली हूं, वो उसे सिसकते हुए बताने लगी। महरोज दंग रह गया। उसने नरमी से उसे खुद से दूर किया और स्टोर रूम का रुख किया। जब उसने स्टोर रूम से अपने एक नए मुलाजिम लड़के जब्बार को निकलते देखा तो उसने गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ा। ये मुलाजिम उसे पहली नजर में ही पसंद नहीं आया था। इश्ताल में उसने जब्बार को मारना शुरू कर दिया। जबकि वो जमीन पर गिरा माफिया मांगने लगा, तब जाकर महरोज का गुस्सा ठंडा हुआ। निकलो इस हवेली से, और अगर दोबारा कहीं आसपास भी नजर आए तो इससे बदतर सलूक करूंगा, वो उसे गिरेबान से पकड़कर बोला और हवेली से निकाल दिया। जब्बार शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। फरियाल को आज तन्हा देखकर जब्बार की नीयत खराब हो गई थी। तभी वो उसका पीछा करता मौके का फायदा उठाकर बुरी नीयत से स्टोर रूम में आ गया था। तुम ठीक हो ना फरियाल? वो उसे शानों से थामकर पूछने लगा तो वह आंसू साफ करती अज़बात में सर हिला गई। उसने शुक्र का सांस लिया कि अगर वो ना आता तो जाने क्या हो जाता। फरियाल, तुम घर जाओ, अब रेस्ट करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूं, वो उसे देखते हुए बोला। फरियाल बहुत डर चुकी थी, इसलिए इनकार किए बगैर गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली गई। महरोज ने सोचा जब वो उसके घर आ ही गया है तो बशीरा बीबी की भी तबीयत पूछ ले। वो उन्हें कई सालों से अपने घर पर देखता आया था। वो उन्हें अपनी दादी की तरह समझता था। वो उसे काफी सालों पहले किस्से कहानियां भी सुनाया करती थी। खैर, वो दोनों अंदर दाखिल हुए, मगर सदफ रोते हुए आई और बताया कि दादी की तबीयत बहुत खराब है। फरियाल के पैरों तले से जमीन निकल गई और वो नाजुक दिल वाली लड़की फूट फूट कर रोने लगी। महरोज परेशान हो चुका था। फरियाल, दादी को अस्पताल लेकर चलते हैं, चलो आओ, वो उजलत में बोला। फरियाल नम आंखों से उसे देखने लगी। मगर आपको तो शादी पर जाना है ना, आपके भाई की शादी है, वो उसे याद दिलाते हुए बोली। शादी किसी की जान से ज्यादा अहम नहीं है, वो उसे नरमी से देखता हुआ बोला। दादी जान वाकई उस वक्त ज्यादा बोलने की ताकत नहीं रखती थी। उनकी तबीयत की वजह से फरियाल ने कोई मज़ाहमत ना की। दादी के साथ वो पिछली सीट पर बैठ गई और थोड़ी ही देर में वो हॉस्पिटल पहुंच गए। वो कॉरिडोर में था। वार्ड में दादी का चेकअप हो रहा था। रीमा बेगम की कॉल्स पर कॉल्स आ रही थी। इसे उन्हें सच बताना पड़ा कि वो फरियाल के साथ बशीना बीबी के लिए अस्पताल में मौजूद था। भाड़ में जाएं वो दोनों महरोज, तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई आज हर चीज से ज्यादा अहम होना चाहिए। घर के बाकी मुलाजिम मर चुके हैं, जो तुम उन गरीब गुरबा के साथ अस्पताल चले गए। रीमा बेगम गुस्से में आ गई थी। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि वो घर के नौकरों को अहमियत दे रहा है। अपनी माँ की बातों से उसे उनकी सोच का अच्छे से अंदाजा हो चुका था, इसीलिए वो कुछ ना बोला। थोड़ी देर में शादी हॉल पहुंचने का कहकर उसने फोन बंद कर दिया। महरोज, शुक्रिया, अब आप जाएं प्लीज, आपके भाई की शादी है, आपको आज वहां होना चाहिए, वो उसे देखकर बोली। महरोज कुछ नहीं बोला था, बस खामोशी से उसे देख रहा था। इतने में डॉक्टर वार्ड से निकल कर आया।
दादी की बेहतर तबीयत के बारे में बताया तो फरियाल अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। महरोज ने डॉक्टर की फीस और मेडिसिन के पैसे दिए थे। उन दोनों को घर छोड़कर वो बैंकेट हॉल में चला गया, जहां रीमा बेगम ने उसे बहुत सी बातें सुनाई थी। वो चुपचाप खामोशी से सुन रहा था। फरियाल ने दादी को मेडिसिन खिला दी तो वो सो गई। सदफ भी सो रही थी। वो अपने लिए गर्म दूध बनाकर लाई और उसे पीते हुए महरोज के बारे में सोचने लगी। महरोज ने उसका कितना साथ दिया था। जब भी उसकी महरोज से मुलाकात हुई थी वो उसके साथ नरमी से पेश आया था। पहले रीमा बेगम के उसे थप्पड़ मारने के बाद इसका दिफा किया, उससे अपनी माँ की तरफ से माफ़ी मांगते हुए टिश्यू पेपर दिया, उसे उस मुलाजिम से बचाया और उस मुलाजिम को नौकरी से निकाला, और फिर उसकी दादी को अस्पताल लेकर गया और सारा खर्चा भी उठाया। वो सारी रात नींद की कैफियत में भी उसके बारे में सोचती रही थी। कितना फर्क था उसमें और उसकी माँ में। रात 11 बजे वो लोग हवेली पहुंच गए थे। मुलाजमा ने सबको चाय पेश की। बाकी कुछ मुलाजिम हॉल से वापस आए, बेगों का खाना पैक करके उन लोगों को देने लगे जो अपने घरों को वापस जा रहे थे। ये जब्बार कहाँ रह गया? मुझे काम है उससे। रीमा बेगम उसे ढूंढते हुए बोली। वो नौकरी से फारिग हो चुका है। महरोज ने उन्हें बताया तो वो तेवरी चढ़ाए उसे देखने लगी। क्या मतलब? उन्होंने नासमझी से पूछा तो उन्हें उनके कमरे में ले जाकर उसने जब्बार की हरकत के बारे में बताया, जिसकी वजह से उसने जब्बार को नौकरी से निकाला था। तुमने ऐसा क्यों किया महरोज, मुझसे पूछे बगैर? और क्यों तुम्हें उस मुलाजमा की इतनी फिक्र है? कभी उसकी खातिर अस्पताल में फिर रहे हो, कभी जब्बार को निकाल दिया मुझसे इजाजत लिए बिना। ये सब क्या है महरोज? साफ बता रही हूं, आइंदा घर के किसी भी नौकर या नौकरानी के मामले में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं। जो करूंगी मैं खुद करूंगी, समझ आया तुम्हें? वो उसकी आंखों में देखकर गुस्सा जब्त करते बोली। ठीक है, वो मजीद बात बढ़ाना नहीं चाहता था, ना उनके गुस्से को हवा देना चाहता था, इसलिए सादतमंदी का मुजाहरा करते बात खत्म कर दी। अलबत्ता उस पर इतना तो वाज़ेह हो गया था कि गरीब लोगों और नौकरों के लिए उसकी माँ की सोच कैसी है। सो आइंदा उसे कुछ बातें अपने तक ही महदूद रखनी है। दादी की तबीयत पहले से बेहतर थी। वो हवेली जाना चाह रही थी मगर फरियाल ने रोक दिया। दादी, आपकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गई थी। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा और सदफ का क्या होगा? आपको मेरा ये फैसला मानना पड़ेगा कि मैं हवेली का काम देखूंगी और आप यहां घर पर रहेंगी। वो फैसला सुनाती हुई बोली। दादी जान ने मसाहमत की कि वो अपनी जवान पोती से मुलाजमत नहीं करवा सकती, मगर उसने अपनी जिद से उन्हें कायल कर ही लिया। उन्होंने कहा वो घर के काम करेंगी और फरियाल को किसी काम को हाथ नहीं लगाने देंगी, जबकि हवेली का काम फरियाल संभालेगी। थोड़ी देर में वो हवेली के लिए निकल गई। रीमा बेगम को दादी की हालत में बताते हुए कहा कि वो उनकी जगह काम करना चाहती है। ठीक है बीबी, तुम्हारी दादी सालों से यहाँ काम कर रही हैं, इसीलिए तुम्हें रख रही हूँ। बस इतना याद रखना, तुम्हारी हैसियत यहाँ मुलाजमा की है। वो कॉफ़ी का घूंट लेते हुए उसे जताते हुए बोली। वो इस बात में सर हिला गई और अपना काम शुरू कर दिया। महरोज फरियाल को घर में अपने आस पास देखकर बहुत खुश था, मगर उसे फरियाल का नौकरानी की हैसियत से काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो जानता था कि ये उसकी मजबूरी थी। फरियाल, एक दिन तुम इस घर में मेरे साथ होगी, मगर नौकरानी की हैसियत से नहीं, बल्कि मालकन की हैसियत से। वो उसे देखते हुए मुस्कुराकर सोचने लगा। फरियाल ने जब उसे अपने जाने मुस्कुराता हुआ पाया तो उसकी निगाहें झुक गईं। दिल अजीब से अंदाज में धड़कने लगा। ना सिर्फ वो महरोज की मोहब्बत को समझने लगी थी, बल्कि उसे अपने दिल में भी महरोज के लिए मोहब्बत का एहसास होने लगा था। लेकिन वो अहद कर चुकी थी कि इस मोहब्बत को कभी जाहिर नहीं होने देगी, क्योंकि महरोज और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उनका कोई जोड़ नहीं बनता था। वो इस घर का मालिक था और वो नौकरानी। बेशक उसने कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, मगर उसके बावजूद वो महरोज का बहुत ख्याल रखने लगी। उसे शाम को खुद चाय बनाकर देने जाती, उसके कमरे की सफाई कर दिया करती। महरोज उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता था, मगर फरियाल के चेहरे पर जो संजीदगी छाई होती थी
اس کے بعد مہروز کے اندر اتنی ہمت ہی پیدا نہیں ہوتی تھی کہ وہ اسے اپنی محبت کا اظہار کرے، اسے بتائے کہ وہ اس کے لیے کیا محسوس کرتا ہے۔ اسے خدشہ تھا کہیں وہ اس کی بات سن کر برا نہ مان جائے اور حویلی چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ 1 سال ہونے والا تھا، وہ دونوں ہنوز ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار تھے، مگر دونوں نے اپنے احساسات اپنے اندر دبا کر رکھے تھے۔ فریال کی محبت کو مہروز بھی محسوس کر چکا تھا۔ آج جب فریال اسے چائے دینے آئی تو مہروز نے اسے اپنے پاس روک لیا۔ فریال، مجھے تم سے بات کرنی ہے، اس نے دھڑکتے دل سے کہا۔ فریال انگلیاں مروڑتی نروس ہو کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ تمہاری آنکھوں میں جو میرے لیے جذبات موجود ہیں، کیا وہ واقعی حقیقت ہے یا میری نظروں کا دھوکہ؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ فریال نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا مگر بولی کچھ نہیں۔ اس کی آنکھیں مہروز کو اس کی محبت کی گواہی دے رہی تھی۔ فریال، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں تو میں اپنی موم سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تمہارے گھر رشتہ لے کر جائیں۔ بے شک ہمارے گھرانے مختلف ہیں، مگر میرا ماننا ہے محبت میں سوائے محبوب کے دنیا کی ہر شے بے معنی ہے، صرف محبوب اہم ہوتا ہے۔ مہروز کی باتیں سن کر اسے رشک آنے لگا۔ بہت کم لوگوں کی سوچ ایسی ہوتی ہے۔ اس نے حیا میں اس بات میں سر ہلا دیا اور شرماتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ وہ بہت خوش تھی مگر نہیں جانتی تھی اس کی یہ خوشی وقتی تھی۔ آج فریال کی رضامندی نے مہروز کے دل سے ایک بوجھ ختم کر دیا تھا۔ فریال شام میں گھر گئی تو اسے دادی کچھ پریشان نظر آئیں۔ اس نے ان سے پریشانی کی وجہ دریافت کی تو ان کی بات سن کر وہ اپنا ماتھا پیٹ گئی۔ اس کی دادی اس کی شادی کے بارے میں متفکر تھی۔ فریال، میں بڑی پریشان ہوں پتر، اگر مجھے کل کو کچھ ہو گیا تو تم دونوں کی شادیاں کون کرے گا؟ میں تم دونوں کو اپنی زندگی میں ہی کسی محفوظ ہاتھوں میں دے کر سکون سے مرنا چاہتی ہوں۔ تو نوکری چھوڑ حویلی کی اور گھر بیٹھ، میں تیرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کرتی ہوں۔ حویلی جا کر میں کام کروں گی، دادی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ فریال افسوس سے بس ان کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اسے مہروز کی باتیں یاد آئیں تو چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دادی آپ پریشان نہ ہوں، جہاں تک رشتے کی بات ہے تو ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں واقعی میرے لیے کوئی اچھا سا رشتہ آ جائے۔ وہ اپنی سوچوں میں مہروز کو سوچتی ہوئی بولی۔ دادی یک لخت خوش ہو گئیں۔ فریال نے انہیں مہروز کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ مہروز کا انتظار کرنے لگی کیونکہ اس نے کہا تھا وہ کچھ دنوں بعد رشتہ لے کر آئے گا۔ آج وہ موم ڈیڈ کے کمرے میں موجود تھا۔ امتیاز صاحب اخبار پڑھ رہے تھے اور وہ فون میں گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ ریما بیگم اپنے قیمتی زیورات ترتیب سے باکسز میں رکھ رہی تھی۔ باتوں کے دوران اچانک امتیاز صاحب کو مہروز کی شادی کا خیال آ گیا۔ میں مہروز کے لیے لڑکی دیکھنا شروع کر چکی ہوں، ریما بیگم خوشی سے بتانے لگی تو مہروز کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ مام، میں اپنے لیے لڑکی پسند کر چکا ہوں، اس نے فون چھوڑ کر انہیں اطلاع دیتے کہا۔ چلو اچھی بات ہے، بتاؤ پھر کون ہے وہ؟ میں جانتی ہوں تمہاری پسند لاجواب ہوتی ہے، اب بھی وہ کوئی امیر گھرانے کی خوبصورت اور قابل لڑکی ہوگی، وہ اعتماد سے بولی تھی۔ ان کی بات سن کر مہروز نے گہری سانس خارج کی۔ نہیں، میرے لیے یہ سب معنی نہیں رکھتا، مجھے فریال پسند ہے، بشیرہ بی بی کی پوتی، اس نے رسانیت سے کہا۔ پہلے تو ریما بیگم اور امتیاز صاحب دونوں کو جھٹکا لگا، لیکن پھر ریما بیگم ہنس دی کہ ان کا بیٹا یقیناً مذاق کر رہا ہے۔ کم آن مہروز، مذاق مت کرو اور بتاؤ کون ہے وہ لڑکی؟ آئی ہوپ خاندان کی ہوگی، وہ اسے دیکھ کر بولی۔ مہروز نے انہیں لب بھینچ کر دیکھا۔ میں سیریس ہوں، مجھے فریال بہت پسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولا۔ اس بار اس کا لہجہ اس کی سچائی کی گواہی دے رہا تھا۔ ریما بیگم کا دماغ گھوم گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا وہ 2 کوڑی کی غریب اور نوکر لڑکی تمہیں پسند ہو سکتی ہے۔ آئی کانٹ بلیو۔ یاد رکھو، اگر تم واقعی اس سے شادی کا سوچ رہے ہو تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس نوکرانی کو میں کبھی گھر کی بہو نہیں بنا سکتی، میرے نزدیک اس کی اتنی اوقات نہیں، وہ غصے سے بول رہی تھی۔
महरोज को फरियाल के बारे में यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। ठीक है मॉम, ये आपका मसला है, मैं फरियाल से ही शादी करूंगा, चाहे फिर शादी आप सबकी रजामंदी से इस हवेली में हो या फिर मेरी रजामंदी से सबकी गैर मौजूदगी में शहर जाकर। अगर मेरी पसंद की अहमियत नहीं तो मैं इस हवेली में नहीं रहूंगा, फरियाल के साथ मैं शहर चला जाऊंगा। आप लोग सोच लें और रात तक जवाब दे दीजिएगा। वो संजीदगी से कहता कमरे से उठकर चला गया। रीमा बेगम का तो दिमाग ही घूम गया। दिल कर रहा था फरियाल को जलील करके रख दें। वक्ती लगाव है इसका, तुम फिक्र मत करो, जब होश आएगा तो खुद ही अपनी बातों पर हंसेगा। इम्तियाज साहब उनका गुस्सा कम करते हुए बोले, नहीं, इसका फरियाल में लगाव वक्ती नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूं महरोज को, वो कभी पीछे नहीं हटेगा, बल्कि आप मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि महरोज खुद अपना फैसला बदलेगा। वो कुछ सोचते हुए बोली। इम्तियाज साहब भी हैरत से उन्हें देखने लगे। फरियाल सबको चाय सर्व करके आखिर में रीमा बेगम के कमरे में आई थी। जो ही वो कमरे से जाने लगी, रीमा बेगम ने उसे रोक लिया और उसे सख्ती से कुछ बातें समझाने लगी। फरियाल की आंखों से आंसू बह रहे थे। जो कुछ वो उसे करने को कह रही थी वो उसके लिए बहुत मुश्किल था। याद रखना, अगर तुमने कोई मक्कारी करने की कोशिश की तो इस गांव से तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को निकलवा दूंगी। सोच लेना, तुम्हारी दादी बीमार है, ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। वो सख्ती से उसका बाजू पकड़ते उसे वार्निंग दे रही थी और वो रोते हुए उनकी हर बात मान गई थी। जब वो कमरे से गई तो रीमा बेगम चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट सजाए बैठ गई, क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। रात को जब महरोज अपना जवाब मांगने आया तो उन्होंने कहा वो उसकी खातिर उसकी ये ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हैं। महरोज को खुशगवार हैरत हुई। इस संडे हम उनके घर रिश्ता लेकर जाएंगे, उन्होंने उसे देखते हुए कहा। महरोज खुशी से उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता उनके गले लग चुका था, मगर वो नहीं जानता था कि वो अपनी मां की साजिश का शिकार होने वाला है। फरियाल चुपके से अपने घर के कोने में पड़ी रो रही थी। अगर वो इतनी कमजोर ना होती तो रीमा बेगम की बातों के आगे डट जाती, कभी अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार ना होती, मगर उसकी ऐसी मजबूरियां थी जिसने उसे ये सब मानने पर मजबूर कर दिया था। उस इतवार वो लोग फरियाल के घर आ चुके थे। दादी जान तो बहुत खुश थी, मगर जब उन्हें पता चला वो लोग फरियाल का रिश्ता लेने आए हैं। फरियाल जब्त से आंखें मीच के किचन में मौजूद थी। उसने इन सबको चाय पेश की। महरोज मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। मेरा बेटा फरियाल को पसंद करता है और ये रिश्ता चाहता है, और इसकी खुशी में ही हमारी खुशी है, इसलिए हम लोग बहुत इज्जत के साथ फरियाल का रिश्ता मांगने आए हैं। रीमा बेगम पुरस्रार निगाहों से फरियाल की तरफ देखते हुए बोली। दादी जान तो उनका बहुत शुक्रिया अदा कर रही थी। माजरत के साथ आंटी, लेकिन मैं ये रिश्ता कबूल नहीं कर सकती, उसने हिम्मत से जवाब दिया तो सब शॉक्ड रह गए। महरोज भी हैरत ज़दा था। क्यों बेटा, कोई परेशानी है? उन्होंने लहजा नरम रखते पूछा। दिल ही दिल में वो बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि मैं आप जैसे अमीर लोगों की फितरत जानती हूँ। महरोज भी सिर्फ दिल लगी कर रहे हैं। इतने अमीर होकर वो मुझ जैसी गरीब लड़की से शादी क्यों करना चाहेंगे? जाहिर है उनका कोई मकसद होगा, और अगर मान लिया जाए वो सीरियस है तो मेरी एक शर्त है कि आप अपनी हवेली का 20% हिस्सा मेरे नाम कर दें, ताकि मुझे यकीन आ सके कि आप लोगों के साथ मेरा फ्यूचर सिक्योर है, और महरोज मुझे अगर छोड़कर किसी और अमीर लड़की के साथ इन्वॉल्व भी हो तो मेरे लिए कोई खतरा ना हो। फरियाल रिसानियत से बोल रही थी। उसकी बात सुनकर सब हक्का बक्का रह गए थे, जबकि महरोज बेयकीनी से उसे देख रहा था। जो फरियाल किसी के सामने कुछ बोलती नहीं थी, आज उसकी जबान बंद ही नहीं हो रही थी। दादी ने हैरत और शर्मिंदगी से उसे खामोश करवाने की कोशिश की, मगर वो बोलती चली जा रही थी। नहीं नहीं फरियाल, ऐसा नहीं है। अगर तुम चाहती हो तो अपने बेटे की खुशी की खातिर हम लोग हवेली का 20% हिस्सा तुम्हारे नाम कर देंगे, मगर तुम ये रिश्ता कबूल कर लो। रीमा बेगम एक अच्छी मां बनने की भरपूर अदाकारी कर रही थी। 1 मिनट मॉम। फरियाल, ये तुम क्या कह रही हो? क्या ये सब कुछ तुम्हारे लिए मायने रखता है? इस तरह की शराइत
इस मौके पर यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो घबराए हुए बोला कि मॉम बुरा ना मान जाए। बस यही थी आपकी मोहब्बत, जरा सी चीज क्या मांग ली? आप तो इतने दंग हैं जैसे पूरी हवेली मांग ली हो। और आप रीमा आंटी, आपने सोचा भी कैसे मैं आप लोगों के घर बहू बनकर आऊंगी? आप जैसे लोग जो अमीर होते हैं वो सिर्फ दूसरों की गरीब लड़कियों के साथ वक्त गुजारी करते हैं, मुखलिस नहीं होते। लिहाजा आप लोग जाएं यहां से, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। वो लहजे में कड़वाहट लाते बोली। महरोज ने उसे समझाने की कोशिश की मगर वो ना मानी तो महरोज गुस्से में अपने माँ बाप को लेकर वहां से चला गया। उनके जाते ही दादी जान गुस्से में आ गई। फरियाल, तूने बहुत गलत किया। महरोज बच्चे को मैं जानती हूँ, वो इतना अच्छा और मुखलिस इंसान था, मगर तूने उन लोगों की इतनी बेइज्जती की। मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया। दादी उसे नाराजगी से देखते हुए बोली। फरियाल का दिल अब मजीद ये दर्द और बोझ अपने अंदर समेट नहीं सकता था। वो थक चुकी थी। फूट फूट कर रोते वो दादी के गले से लग गई। दादी, मैंने ये सब सिर्फ हम लोगों के लिए किया। रीमा आंटी ने मुझे धमकी दी थी, अगर मैंने उनकी बात ना मानी तो वो हमें गांव से निकलवा देंगी। दादी, हम क्या करेंगे? हमारा तो कोई नहीं है ना, हम गरीब हैं। वो सिसकते हुए उन्हें बता रही थी। जब दादी ने उसके मुंह से यह सुना तो वो शॉक्ड रह गई। फरियाल का दर्द समझते हुए वो भी रो रही थी। ये तो वो जानती थी रीमा बेगम बहुत चालाक है, मगर वो अपने बेटे को भी धोखा देंगी या जिन्हें अभी अंदाजा हुआ था। अल्लाह गारत करेगा ऐसी औरतों को जो दुख देती हैं। फरियाल, तू रो मत, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। वो उसकी कमर सहलाते हुए बोली। फरियाल ने रो रो कर अपनी बुरी हालत कर ली थी। अपनी तबीयत भूलकर वो फरियाल की फिक्र करने लगी। महरोज गुस्से में घर आया था। रीमा बेगम उसे समझाने लगी कि फरियाल को भूल जाओ, ऐसी गरीब लड़कियां सिर्फ लालची होती हैं और दौलत पर मरती हैं। अगर वो तुम्हारे साथ मुखलिस होती तो हमें यूं जलील ना करती। रीमा बेगम उसका ब्रेन वॉश कर रही थी। अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए वो सिगार पीने लगा। उसे सुकून नहीं आ रहा था। बार बार वो फरियाल के बारे में सोच रहा था कि अचानक वो इतनी जिद्दी और बदतमीज कैसे हो गई थी। रात हो चुकी थी और वो अब तक बेसुकून था। वो हर सूरत फरियाल से अकेले में बात करना चाहता था, इसलिए खामोशी से हवेली से निकल गया और फरियाल के घर के बाहर पहुंच गया। उसने आहिस्तगी से घर का दरवाज़ा खटखटाया। फरियाल जाग रही थी। वो तहज्जुद की नमाज पढ़कर फारिग हुई थी। इतनी रात को दरवाजे पर दस्तक सुनकर परेशान हुई, मगर फिर सोचा कोई मोहल्लेदार ना हो, इसीलिए आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला। घर के अंदर महरोज को दाखिल होता देखकर वो दंग रह गई। महरोज ने दरवाज़ा बंद किया और उसे कमरे में ले गया जहां कोई नहीं था। दादी जान और सदफ सो रही थी। उसे देखकर फरियाल के होश उड़ गए। क्यों आए हैं आप यहां? उसने उससे पूछा। मैंने तो तुमसे मोहब्बत में कोई शराइत नहीं रखी, तुम्हें हर हाल में कबूल किया, फिर तुमने क्यों मोहब्बत में शर्त रखी? वो उसका बाजू थाम कर पूछने लगा। फरियाल ने एक झटके से अपना बाजू छुड़ाया। कौन सी मोहब्बत? मैं तो आपसे कोई मोहब्बत नहीं करती, आपको यह खुशफहमी क्यों हुई? वो उसकी आंखों में देखते बोलने लगी। महरोज हैरत ज़दा रह गया कि वो इतना बदल कैसे गई थी। उसके हर अंदाज से और उसकी आंखों में वो अपने लिए मोहब्बत देखता था, मगर आज उसका हर अंदाज बदल चुका था। प्लीज़ आप जाएं यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी है आपसे। मेरी इज्जत का तमाशा ना बनाइएगा। वो निगाहें चुराती हुई बोली और वहां से चली गई। महरोज खाली हाथ घर लौटा था। वो मुसलसल फरियाल के बारे में सोच रहा था और यहाँ उसकी माँ उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू हो गई थी। फरियाल हवेली आती थी, मगर अब उसने महरोज के सामने आना छोड़ दिया था। एक हफ्ता होने वाला था जहां वो फरियाल के हिजर में जल रहा था, वहीं उसे फरियाल अपने से ला ताल्लुक नजर आई तो उसने एक फैसला किया कि अगर फरियाल उसे बगावत कर सकती है तो वो भी बगावत करेगा। तुमने मुझे धोखा दिया है फरियाल, और तुम्हें इस धोखे की सजा जरूर मिलेगी। वो कुछ सोचने लगा और फरियाल के घर उसकी दादी जान से बात करने चला गया, जबकि फरियाल हवेली में थी। प्लीज दादी जान, आप उसको मनाएं कि वो मुझसे शादी कर ले। मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं उसकी हर शर्त मान लूंगा,
मगर वो निकाह की हामी तो भरे। वो बहुत उम्मीद से उन्हें कह रहा था। दादी जान कुछ सोचने लगी। इस बार वो किसी से डर कर नहीं बल्कि अपने दिल से फैसला करना चाहती थी। फरियाल इस तरह कभी नहीं मानेगी। महरोज, तो उसके साथ जबरदस्ती निकाह कर ले, उसे मजबूर कर दे। दादी जान उसे सच नहीं बता सकती थी, लेकिन उन्हें यह तरीका ठीक लगा था जिससे फरियाल महरोज से निकाह कर ले। दादी जान महरोज को जानती थी कि वो अपनी मोहब्बत में फरियाल के लिए कुछ भी कर सकता था और आगे जाकर वो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता था। जब दादी जान उसका साथ दे रही थी तो वो सोच चुका था कि उससे जबरदस्ती निकाह करेगा, उसे मजबूर करके। इस फैसले में वो अपने घर वालों को शामिल नहीं कर सकता था क्योंकि जानता था कि अब वो उसका साथ नहीं देंगे। अगले दिन जब फरियाल हवेली के लिए घर से निकली तो महरोज पहले से ही गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। उसने जबरदस्ती फरियाल को गाड़ी में बिठाया और उसे शहर ले जाने लगा। उसने शहर में अपने एक दोस्त के घर निकाह ख्वां का इंतजाम किया था और वहीं उसे निकाह करना था। ये आप क्या कर रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? गाड़ी रोकें। मुझे मालूम है आप मेरे साथ इंतकाम में कोई बुरी हरकत करेंगे क्योंकि मैंने रिश्ता कबूल नहीं किया, इसलिए। वो गुस्से से बोली, मगर महरोज जैसे कान लपेट कर बैठा था, उसकी किसी बात को सुन नहीं रहा था। वो उसे अपने दोस्त के घर लेकर आया और जब उसने पिस्तौल निकालकर अपने ही माथे पर रखी तो फरियाल के पैरों तले से जमीन निकल गई। क्या अब भी तुम निकाह से इनकार करोगी? सोच समझ कर करना, क्योंकि इस बार तुम्हारे इनकार पर मैं खुद पर गोली चला लूंगा। उसकी धमकी पर वो पैनिक होकर कांपने लगी। नहीं महरोज, प्लीज ऐसा ना करें। ये सब जज्बात में आकर नहीं हो सकता। दादी बीमार है, उन्हें जब पता चलेगा तो उन्हें तकलीफ होगी। मैं उन्हें बताए बगैर ये निकाह नहीं कर सकती। वो तड़प कर बोली। 1, 2, 3, जल्दी से निकाह की हामी भरो वरना मैं 5 गिनने में गोली चला लूंगा। वो गुस्से की शिद्दत से बोला। फरियाल बहुत बुरा फंस गई थी, डर चुकी थी कि कहीं वाकई महरोज खुद को गोली मारकर नुकसान न पहुंचा ले। ठीक है, मैं कर लूंगी निकाह, वो हार मानते बोली। महरोज के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट फैली। थोड़ी ही देर में निकाह शुरू हुआ और वो उसकी बीवी बन गई। निकाह ख्वां जा चुके थे। अब इस घर में सिर्फ महरोज और फरियाल मौजूद थे। आज तुमसे तुम्हारी हर बदतमीजी का हिसाब लूंगा मैं फरियाल। तुमने मोहब्बत के नाम पर धोखा दिया है मुझे। वो उसे देकर संजीदगी से बोला तो वो तड़प कर रह गई। प्लीज मुझे घर ले चलें, दादी की तबीयत ठीक नहीं, मैं उनको छोड़ कर आई हूं। वो उनकी मिन्नत करते बोली। वो फरार चाहती थी। अब से तुम्हारा वो घर नहीं बल्कि ये घर है जहां तुम अपने शौहर के साथ रहोगी। वो उसे जताते हुए बोला तो वो मजीद शिद्दत से रोने लगी। तुमने निकाह से इनकार क्यों किया था उस दिन? अगर सच बता दो तो शायद मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊं। क्या वाकई तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? वो उसके करीब बैठते हुए बोला। फरियाल निगाहें चुराने लगी और झूठ बोल दिया कि उस दिन उसने निकाह से इनकार इसलिए किया था क्योंकि वो शादी करके अपनी बीमार दादी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। महरोज को उसका अंदाज कुछ अजीब लग रहा था, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। अपनी मोहब्बत को पा लेने के बाद वो उसमें अपना सुकून तलाश करता उसे अपने सीने से लगा चुका था। फरियाल से सकने लगी थी, चाह कर भी वो उसे सच नहीं बता सकती थी। मगर उसकी जान निकलने लगी जब महरोज ने कहा, मैं तुम्हें हवेली लेकर जा रहा हूं। वहां जाकर तुम मेरे घर वालों से माफी मांगना क्योंकि तुम्हारी बातों ने उनका दिल दुखाया और उन्हें अपनी बेइज्जती महसूस हुई। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया कि रीमा बेगम तो उसे जान से मार डालेंगी जब उन्हें पता चला कि वो उनके मना करने के बावजूद उससे निकाह कर चुकी है। नहीं प्लीज, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी, वो घबराते हुए बोली। महरोज चौंका और उसकी आंखों में देखने लगा। मुझे सच बताओ फरियाल, तुम इतना बदल कैसे गई हो? तुम्हें तुम्हारी दादी की कसम, अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारी दादी की जान को खतरा हो सकता है। उसकी बात सुनकर वो कांप गई। अपनी दादी से वो बहुत प्यार करती थी। उसने डरते हुए महरोज को सच बता दिया कि उसकी मां ने उसे वो सब करने को कहा था। वो शॉक्ड होकर रह गया।
अब उसे सब समझ में आ गया था कि उसकी माँ जो फरियाल से इतनी नफरत करती थी, अचानक उसके घर रिश्ता लेकर क्यों चली गई। मॉम ने मेरे साथ धोखेबाजी की, अब सजा उन्हें भुगतनी पड़ेगी। जिसने भी तुम्हारे और मेरे दरमियान आने की कोशिश की, उसकी माफी नहीं। वो गुस्से से बोल रहा था। फरियाल को लेकर वो अपने लाहौर वाले घर में शिफ्ट हो गया। उसकी दादी और सदफ को भी उसने अपने घर बुला लिया था। हवेली जाकर उसने रीमा बेगम से कहा, जिस तरह उसे धोखा दिया गया, अब वो इस हवेली से ही चला जाएगा। रीमा बेगम के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो वाकई वहां से चला गया था और वापस नहीं आया था। उसके गम में रीमा बेगम तड़प रही थी। अपनी ही दौलत से उन्हें अब सुकून नहीं मिल रहा था। वो उनसे नाराज होकर गया था। वक्त के साथ साथ उन्हें उनके किए की सजा मिल रही थी और दौलत भी उनको चैन नहीं दे रही थी। महरोज फरियाल के साथ बहुत खुश था और उसकी मोहब्बत ने यह साबित कर दिया था कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो मादी अशिया की कोई हैसियत नहीं होती। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।